مدنی مذاکرہ 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 شرعی سوالات اس میں سنے نیکوں کی حالات اس میں سنے سیکھے عقائد دین کے کیا ہے شیطان سے ایمان کو بچائیں شیطان سے ایمان کو بچائیں. کہاں سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم کے پی کے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں. بہاؤ نگر سے. لاہور سے. ہم فیصلہ آباد سردار آباد سے آئے ہیں. میں حیدرآباد سے آیا ہوں. ایڈوکیٹ محمد شکیل ناگڑ. یہاں 12 دن کے لیے مدنی قافلے کے لیے آئے ہیں. 400-500 اسلامی بھائی آئے ہیں ٹرین میں. 12 دنوں کے قافلے کے لیے آئے ہوئے. اور کم و بیش 20-25 اسلامی بھائی ایک ماہ کے مدنی قافلے کے لیے آئے ہیں. پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو میری داڑھی نہیں تھی. پچھلی دفعہ میں نیت کر کے گیا تھا کہ میں داڑھی رکھوں گا اور اب میں آیا ہوں اور انشاءاللہ میری داڑھی بھی ہے. آئندہ سے کوشش کروں گا کہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کروں. اس میں امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور جو کہ دین کے بارے میں معلومات بھی ہو جاتی ہے. جو چیز ہمیں کہیں سے نہیں ملتی ہمیں مدنی مذاکرت سے حاصل ہوتی ہے. سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ ماشاءاللہ سب کے سروں پہ جو ہے نا امام جو ہے نا سجے ہوئے اندر سے جو ہے نا دل جو ہے نا وہ بالکل تڑپ رہا تھا کہ بس کسی طریقے سے بھی جو ہے نا مرشد کی اور یہ فاصلہ جو ڈسٹینس ہے نا یہ اور کم ہو جائے. اور اسی کی جستجو میں ابھی ٹوکن کے لیے بھی جو ہے نا ہے میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دے کر میں نیت کروں گا انشاءاللہ کہ میں داڑھی مبارک جو ہے نا چہرے پہ انشاءاللہ. سبھی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں کیونکہ مرشد کا دیدار باہو سن لاکھ کروڑا حجا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اتنی بڑی شخصیت اور یہ نوجوان بوڑھے لوگ نہیں مسجدوں میں آتے تھے اب تو نوجوان ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور میرے پیر کی یہ کرامت ہے. الحمدللہ ہم فیضان مدینہ یہاں پہلی مرتبہ آئے تو دل کرتا ہے کہ ساری زندگی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارے. اتنا مزہ آ رہا ہے. مرشد کی تو پھر بات ہی لفظ نہیں ہے. مرشد کی تو پھر بات ہی الگ ہے. مرشد اطہار پر نور کی برسات. ہاں ہمارے لیے تو باعث فخر ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو درازی بالعمر خیر عطا فرمائے. ہم بیانات سنتے ہیں امیر اہل سنت کی باتیں سنتے ہیں تو پورے ہفتے کے لیے ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ نمازوں پہ دلچسپی رہتی ہے ہماری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت کر لی کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اب معتکف ہو گئے. نیت دل میں حاضر ہو زبان سے بھی اس کو دوہرا لے تو یہ زیادہ اچھا ہے. نہ بھی دہرائیں تو نیت ہو چکی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب اعتکاف کا ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی اعتکاف کی نیت کھانا وغیرہ آ گیا تو کھا نہیں سکتے افطار بھی نہیں کر سکتے مسجد کے اندر. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اب چاہیں تو افطار کر لیجئے کھا پی لیجئے. تاہم اعتکاف کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نیت کی جائے. چنانچہ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اللہ کی رضا کے لیے اور کچھ ذکر و درود کر لیں. چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. مکروہ وقت نہیں ہے تو بے شک 2 نفل پڑھ لیں تلاوت کر لیں. بار کچھ نہ کچھ کر کے جیسے 12 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیے اب یہ کہ آپ بھلے کھائیں پیے
सोएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1444 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की आज 6ठी शब है। मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 3 से आज की तारीख की मुनासबत से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 6। जिब्राइल ने मुझसे अर्ज़ की कि रब तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जिसके ज़रिए आप बग़ैर किसी एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट के किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक मरीज़ की जान बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फर्स्ट एड एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने के लिए डॉक्टर की डिग्री होना ज़रूरी नहीं, आम अफराद भी थोड़ी सी मेहनत के साथ इसको सीख सकते हैं। मसलन अगर किसी आदमी को अचानक से सीने में शदीद दर्द होता है, वो अपनी छाती पर हाथ रख के पसीने से शराबूर आपकी आंखों के सामने बेहोश हो जाता है, उसकी सांस भी रुक जाती है, बज़ाहिर आप समझेंगे कि ये शख्स फोत हो गया है और आप खुद भी घबरा जाएंगे। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आप अपने हवास बरकरार रखें और फर्स्ट एड की महारत इस्तेमाल करते हुए ऐसे शख्स को CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन डिलीवर करें, साथ ही में एम्बुलेंस भी बुलवा लें और एम्बुलेंस के आने तक CPR का अमल जारी रखें, तो आपका ऐसा करना इस मरीज की जिंदगी बचाने का सबब बन सकता है। इसी तरह किसी के गले में कोई चीज़ फंस गई है और वो सांस नहीं ले पा रहा, खांसने की कोशिश कर रहा है, अब अगर आप उसके दोनों कंधों के बीच में सीधे हाथ की हथेली से कम 5 बार जोर से हिट करेंगे तो उम्मीद है कि फंसी हुई चीज़ निकल जाएगी। अलगर्ज घर में या बाहर पेश आने वाली हर इमरजेंसी सिचुएशन में आप फर्स्ट एड के ज़रिए लोगों की मदद करके सवाब के हकदार बन सकते हैं। फर्स्ट एड का कोर्स अमूमन 1 दिन का होता है और हर 3 साल बाद इसको दोहराना होता है। जिस तरह हर घर में एक आलिम दीन का होना ज़रूरी है, तो इसी तरह हर घर में एक फर्स्ट एडर का होना भी ज़रूरी है। अमीर अहले सुन्नत, आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? बहरहाल यही कह सकते हैं कि इनका हिस्सा था, इन्होंने बयान किया, लेकिन एक फर्स्ट एड की अहमियत तो है। बाज़ औक़ात यानी कि कुछ न कुछ हो जाता है किसी को घर में या खुद को, तो अगर फर्स्ट एडर होगा तो वो तरकीब बन सकती है, बाज़ औक़ात जान भी बचाई जा सकती है। अब इसके लिए ज़रा सीखना चाहिए। अब इन्होंने ये जो कंपेयर किया ना कि एक घर में एक जिस तरह आलिम होना ज़रूरी, इसी तरह फर्स्ट एडर होना भी ज़रूरी है। खैर, आलिम के अपने फ़ज़ाइल हैं। अलबत्ता तबीब जो है ना, तबीब जिस तरह आलिम बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है कि आलिम हो, इसी तरह तबीब का भी यही है कि फ़र्ज़ किफ़ाया हो। वो बहरहाल जो भी शरई तकाज़े हैं वो भी पूरे करने होंगे। फर्स्ट एडर जो है वो तबीब चूँकि नहीं होता, तो वो आलिम के मुकाबिल, लेकिन फिर भी आलिम के अपने जो फ़ज़ाइल हैं वो तबीब के हमने पढ़े नहीं है। तो अब फर्स्ट एडर जो है ये ज़ाहिर है कि उससे ही बनेगा, ट्रेनिंग से, लेकिन ये अल अवाम कल अनआम, अवाम जो नहीं मरता उसको भी मार देते हैं, यूँ समझ लो। एक बार वो है कुछ साल पहले का पुराना वाक़या, एक बम ब्लास्ट हुआ था कराची में, तो हड़ाहड़ी हो गई थी। अब जिस तरह ये ज़ख्मियों को उठा उठा के गाड़ियों में ये झोंक रहे थे ना, इसमें कई बेचारे दम तोड़ गए होंगे, इधर से खींच रहे उधर से खींच, हड़ाहड़ी ये होता है। मतलब अरे इस तरह के मनाजिर उसमें आते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, खींचा खींची ज़ख्मियों को कर रहे होते हैं। ये बेचारे समझते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं। ये मदद बहरहाल जो भी कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि उसी केस की बात कर रहा हूँ कि एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक कोई
शख्सियत थी। तो उसको हम चंद डॉक्टर के यार इसको बचा लेते, कुछ कोशिश करते, उम्मीद थी उसके बचने की। हम आगे बढ़े तो इनके चाहने वाले जो थे, कोई तंजीम थी, तो चाहने वाले जो ना उड़ी करके उन्होंने शोर मचाया, नारे लगाए और डॉक्टरों पर, वो डॉक्टर हम सब भाग गए जैसे हमने कोई ना धमाका कर दिया हो। तो इस तरह वो हड़ाउड़ी करके इन्होंने अपने लीडर को मार दिया। और डॉक्टर के इस तरह के तासुरात थे कि इसकी वजह से वो लीडर को हम फर्स्ट एड या कोई भी इसको इलाज फराम नहीं कर सके। तो इनके चाहने वालों ने बेचारों को ऊपर रह के मरवा दिया। ये लुबे डुआ बता रहा हूँ। तो ये होता है मतलब। तो अब जैसे हॉस्पिटल जाकर हड़ाउड़ी करने से, खैर हड़ाउड़ी तो कहीं भी मुसलमान का अंदाज ये बदअखलाकियों वाला होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हॉस्पिटल में जाकर जहाँ अमला इलाज करने के लिए तिब्बी अमला मौजूद है, ना वो वहाँ था, ना इसने बम ब्लास्ट किया, ना इसने गोली चलाई है, ये तो आपकी मदद के लिए बेचारे आ रहे हैं या वहाँ मदद कर रहे होते हैं। ये जो डॉक्टर वगैरह जो होते हैं तो सारे वो इमदाद कर रहे होते हैं। तो इन पर भी फिर जो मैंने वहाँ गया था मैं देखने के लिए मरीजों को, जिस तरह ये कर रहे थे ना अंदाज, वो बात लोगों का अंदाज ठीक नहीं था, जख्मियों का या इनके मानने वालों का। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए कि बस वो ये है, मालूमात नहीं है। तो अब इसमें कोई फर्स्ट एडर होगा भी तो ये उसको भी मतलब यानी कि पूरा कर देंगे। ये अवाम जो है ना, अवाम है, तो कभी भी ऐसी कोई वारदात हो, कोई हंगामा हो, ज़ख्मी हो कोई, तो इस तरह हड़ाउड़ी नहीं करनी चाहिए। और सॉफ्ट वे में, नरमी के साथ, है ना, मरीज़ को इस तरह के ज़ख्मियों को उठाने के भी बाकायदा वो तरीक़े होते हैं कि किस तरह इसको उठा कर ले जाना है, किस तरह ज़रूरतन चादर में डालकर 2 आदमी या 4 आदमी उठाकर इसको ले जाए। इतनी कि अब ये इतना तो बेचारा ज़ख्मी हो चुका है, अब अगर हम कटे हुए बकरे की तरह खींचेंगे तो ये तो नहीं जाता होगा, तो चला जाएगा। एक मुहावरा है, मौत आएगी तभी जाएगा, लेकिन ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएगा, या हो सकता है इसका बेचारे की मौत इसी तरह लिखी हो, तो ये असबाब बन जाए कि इसको खींचतान करके घसीट कर वो। बहरहाल फर्स्ट एड जानना चाहिए। तो कभी भी इस तरह के मामलात हों तो आप तो हड़ाउड़ी को रोक नहीं सकते, जो सुन रहे जा रही है थोड़ी मतलब वहाँ होंगे, और जब होंगे तो पता नहीं हवास कायम रहेंगे या नहीं। इमारत गिर जाती है, कभी गाड़ी उलट जाती है, कभी बस उलट जाती है, तो ये अवाम इसी तरह करती होगी, ज़ख्मियों को इस तरह खींचती होगी कि बस के मतलब टूटे फूटे जो पत्रे और चादरें होती हैं, इससे खींचकर वो बेचारा किसी का हाथ रह जाता होगा, किसी की टांग फंस जाती है और ये खींच लेते होंगे कि हम निकाल रहे हैं। बस ये सब के तरीके हैं। ये एक दिन का कोर्स ये बता रहे हैं तो मुमकिन हो जिससे तो उसको ज़रूर करना चाहिए शरई तकाज़ों के मुताबिक। घर घर में फर्स्ट एडर हो, ये समझ में आता है। फर्स्ट एडर भी हो, फर्स्ट एड का सामान भी हो, बॉक्स आता है इसका, खासकर बच्चों वगैरह का जो घर में होता है सिलसिला, तो बहुत सारे लोग रखते भी होंगे, ज़रूरत पड़ती रहती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। કે કોઈ દીન ઇસ્લામમાં કોઈના ઘરમાં ઝાંકવું એ મના છે, કોઈના મોબાઈલમાં ઝાંકવું એ સહી છે या गलत છે? मोबाइल में जादू, किसी के घर में झांकना मना है। किसी के घर में झांकना तो मना है ही, गलत है। तो किसी के मोबाइल में झांकना सही है या गलत है? हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह। घर में झांकना भी किसी के ज़ाहिर के माना है, और मोबाइल में झांकना या किसी की डायरी में झांकना जो लिखते हैं ना अपने लिए, या किसी के ख़त में झांकना, देखना उसको। हदीस पाक में जो किसी का ख़त देखता है वो आग देखता है। तो अब ये कि ये मोबाइल भी है, अब इसको मैं अपने तौर पर मैं शरह तो पढ़ी नहीं है कि मोबाइल इसमें आएगा कि नहीं, नई ईजाद है। इन ख़त में ज़्यादा लोगों के राज होते हैं, तो मोबाइल में भी राज हो सकते हैं, राज ख़त में तो मोबाइल में भी हो सकते हैं। पैगामात होते हैं, तरह तरह के टेक्स्ट मैसेज होते हैं, रिश्तेदारों के, ख़ानदान वालों की तस्वीरें, औरतों की भी तस्वीरें होती हैं, अगरचे होनी नहीं चाहिए,
मोबाइल में जो लोग अपनी बहनों की या बीवी की और तस्वीरें रखते हैं, जवान बेटियों की, इनको तो मैं मशवरा दूंगा कि आज और अभी डिलीट कर दें। ठीक? आपके दोस्तों के हाथ में भी तो जाता होगा ना कभी तो ये मुश्किल खड़ी होती है, कभी इधर उधर रह गया, गुम जाता है, तो ये फिर अब जिसमें हया हो मैं उसको समझा रहा हूँ, बाकी तो बेपर्दा लेकर घूम ही रहे होते, स्कूटर पर ले जा रहे, चुटिया लहरा रही है, अब उसको सारे मेरी बातें कहाँ समझ में आएंगी। पर्दे का तो हुक्म शरीयत है ना, या मौलाना मौलवी की बातें तो है नहीं, ये अल्लाह और रसूल के हकाम है, ये कि पर्दा फ़र्ज है, औरत पर पर्दा होना चाहिए। तो बहरहाल लेके तस्वीरें हया जिसमें हो तो वो फ़ौरन अभी डिलीट कर दे। अगर जवान बेटी, बहू, बहन, बीवी की तस्वीरें, माँ की तस्वीरें, अब बोलो माँ मेरी बूढ़ी, आपको बूढ़ी लगती होगी, यानी कि ऐसी बुढ़िया के जो करी मंजर हो, ऐसा कि जिसको देखकर मतलब कोई हो ही नहीं, वो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ना उसको निकाह की आरजू रही हो, तो उसमें गुंजाइश निकलती है पर्दे के ताल्लुक से। लेकिन आम तौर पर जिसको हम बूढ़ी कहते हैं, भले उम्र 70 साल की हो, लेकिन पुरकशिश भी होती है। बारह लेके पर्दा पर्दा ही है, उसको होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसे इसमें भी क्या इसी तरह होगा कि अगर कोई हमारे बराबर में बैठा है और मोबाइल उसने अपना जैसे ऑन किया और मैसेजेस चेक की, तो बातों का नज़र पड़ती है, तो क्या वो नज़र हटा लेनी चाहिए, या बातों का होता है कि ये कंटिन्यू उसकी तरफ ध्यान ही रहता है? आप इसमें क्या फरमाते हैं? बिल्कुल हटा देनी होगी, बल्कि ये पहले भी मैं समझाता था, अपने ये कुफले मदीना के पेड़ में भी लिखते थे, वो देखा मत, भले आपके लिए लिख रहा है यार, हो सकता है इसमें चांस होता है कि वो कोई ऐसी बात लिख रहा हो आप, और फिर इसको एहसास हो यार ये तो नहीं लिखना चाहिए, बुरा लगेगा, हो सकता है, तो आप देख लेंगे तो वो दिखाए, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो आपको वही पढ़ना जो आपको वो दिखाए, आपने नहीं देखना। ये पेड़ में या कागज में कोई आपके लिए पैगाम लिख रहा है, या कुफले मदीना की कोई तहरीर लिख रहा है, देखना नहीं है, ना किसी का पेड़ चेक करना है, कुफले मदीना का देखना है। पता नहीं किस किस केस में ऐब लिखे हों, किसी को गलती की निशानदेही की हो समझाने के लिए, और आप भी उसको देख लें। किसी की तहरीर ना देखी जाए कि जो किसी हदीस पाक में जो किसी का खत देखता है वो आग देखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर लसन सां मुंहिंजो सवाल आहे, व्हाट्सएप ते ऐं सोशल मीडिया में अक्सर वीडियो मोकिलींदा आहिनि, हुन में पहिरीं सलाम कंदा आहिनि, इन जे सलाम जो जवाबु ॾियणु ज़रूरी आहे ना? बराए करम जवाबु इरशाद फरमाइजो। ऐं जेका मतिलबु बयान ॾींदा आहिनि, मुक़र्रिर आहिनि, डॉक्टर आहिनि, उहे बि अस्सलाम वालेकुम चवंदा आहिनि, इन्हनि जा सलाम वाजिब न आहिनि, मुलाक़ात त न आया आहिनि, सलाम कंदा आहिनि, सलाम करण में हरज भी कान्हे, जवाब ॾियण में भी हरज कान्हे, मगर वाजिब ना थींदो। ये सिंधी में मैं तो आती नहीं है, और बस क्योंकि मेमनी और सिंधी मिलती जुलती है, हम लोग मेहमान हैं तो गुजारा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, इन्होंने कहा था कि ये व्हाट्सएप में ऐसे क्लिप चलते हैं, इसमें पहले सलाम करते हैं, कभी कोई डॉक्टर आता है, कोई साइंटिस्ट आता है, कोई कुछ यूट्यूबर भी सलाम करते होंगे। ये क्लिप जो होते हैं, ये सलाम किया, इसका जवाब देना वाजिब नहीं है, दें तो कोई हरज भी नहीं, मना भी नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पिछले जो दो सवालात थे, एक तो फ़र्स्ट एड से ताल्लुक़ था, तो उसमें माशाल्लाह आपने फ़र्स्ट एड और फिर फ़र्स्ट एड बॉक्स के ताल्लुक़ से, फ़र्स्ट एड बॉक्स के ताल्लुक़ से अगर एक मदनी फूल ये अगर हो जाए कि उमूमन हमारे फ़र्स्ट एड बॉक्स रखने के बाद एक्सपायरी डेट देखना लोग भूल जाते हैं। फ़र्स्ट एड में ऑइंटमेंट भी रखी जाती है, यानी कि ट्यूब वगैरह ज़ख़म पे लगाने के लिए, और टेबलेट्स भी रखी जाती हैं, और ये रख कर गोया कि ऐसा लगता है कि ये अब इस्तेमाल हो, तो अब जब भी इस्तेमाल होगा तो ये फ़ौरन ट्यूब निकालेंगे या फ़ौरन दवाई निकालेंगे, दे देंगे फ़र्स्ट एड के नाम पर, या बाज़ औक़ात ऐसी वो लगाने के लिए ज़ख़म पर लाल दवाइयाँ इस तरह की रखी जाती हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नाम होते हैं।
تو وہ درد وغیرہ کے لیے پین کلر کے طور پہ یوز کی جاتی ہیں، تو وہ عموماً ایکسپائر ہو جاتی ہیں. تو دفعہ ہے تو ایکسپائر نہ ہو یہ اہتمام ہو. اور اس کے لیے میری اس میں مشورہ یہ ہے دوائی کے تعلق سے، ایک مشاہدے اور تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ میڈیکل اسٹور پر دوائی لینے جائیں نا تو آپ اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھیں کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ مہینوں کے بعد ہے یا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دوائیاں فوراً ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ بنتی ہیں. کئی دوائیاں ایسی ہیں جن کی ایکسپائری ڈیٹ تقریباً 2 یا 3 سال تک ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو دوائی آئی ہے وہ اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ آپ دیکھ لیجئے گا، وہ اگر بنی 1.5 سال پہلے ہے اور اس دکان کے اندر وہ 1.5 سال سے وہ دوائی موجود ہے تو اب اس کی ایکسپائری ڈیٹ چند مہینوں کے بعد ہوگی. تو آپ کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ دوائی لینے کے لیے دکان پر جاتے ہیں، میڈیکل اسٹور پر کسی جگہ پر، تو میکسیمم یعنی زیادہ سے زیادہ ایکسپائری ڈیٹ والی آپ میڈیسن یا کوئی بھی چیز آپ لیں اس کا دیکھ لیں کہ آپ اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ کی طرف آپ لے جائیں گے تو شاید آپ کے پاس وہ دوائی یا وہ چیز دیر تک رہ سکتی ہے. ماشاءاللہ. دوسرا وہ جو موبائل والا تھا نا حضور، اس میں تو دیکھنا کرنا، لیکن یہ جو لوگ پاسورڈ کے چکر میں تو زیادہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ فوراً چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اسے پاسورڈ کیا لگایا اپنا، پاسورڈ کیا لگایا. یہ عجیب و غریب قسم کی ہے کہ دماغ میں کہ اس کا پاسورڈ پتہ چل جائے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کا موبائل لے لیں گے نا، اب کھلے گا نہیں تو بولے گا یار ذرا پاسورڈ بتانا، اب اس کو پاسورڈ بتانے میں اس کو آسان نہیں ہے. اب لوگ خیر اب بھی تو خیر اپ گریڈ بہت ہو گیا ہے، اب پاسورڈ کی جگہ پر لوگوں کے فنگر پرنٹس آ گئے، انگوٹھے سے کھلے گا، یعنی آپ کے موبائل میں آپ کا فنگر پرنٹ آ جائے گا کہ آپ کے فنگر پرنٹ سے ہی آپ کا موبائل کھلے گا یا آپ کے آئی کانٹیکٹ سے ہی آپ کا موبائل فون کھلے گا. پاسورڈ نہیں ہو، یعنی آپ کی آنکھیں آپ کے موبائل کی، آپ کی آنکھیں آپ کا موبائل کا پاسورڈ کھول سکتی ہیں. تو بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ موبائل لیں گے وہ ذرا آنکھ کھولنا تو یوں اس کو دکھائیں گے اور اپنا اس کا موبائل کھول لیں گے. تو یہ جو عجیب و غریب قسم کی طبیعت ہوتی ہے نا، منع بھی نہیں کر سکے آدمی اور جھانکتے بھی رہیں گے پاسورڈ کو تو چھپا چھپا کر پاسورڈ کھولو، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ طبیعتیں ختم ہو جائیں گی تو شاید بہت آسانی ہو جائے گی، ورنہ پاس والے بیٹھے ہوئے سے امن کا ہونا بہت مشکل کام ہو گیا ہے. مطلب اب فری شپ بھی بعض ایسی ہوتی ہے کہ ان کو یہ ایزی لیتے ہیں نا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ہے بھی کوئی سی چیز تو تم سے کیا چھپانا، گھر کا آدمی. حضور مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ موبائل جیسے بھی آپ نے تصاویر وغیرہ کا کہا نا فیملی کی، موبائل لینے کے بعد ان کا شاید پہلا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ گیلری کھول لیتے ہیں جس میں تصاویر ہوتی ہیں، اور پھر عجیب مطلب ایسا پتہ نہیں دماغ کہاں ہے یا ہے بھی کہ نہیں ہے، یا دماغ کو کوئی زنگ لگ گیا، دمک لگ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے. ایک تو ہمیں اپنے موبائل میں کم از کم اپنی فیملی فوٹوگراف سے اس طرح کی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. چوری بھی ہو جاتے ہیں، کھل بھی جاتے ہیں موبائل. ابھی آپ کے موبائل کتنے ہی آپ لاک کر دیں، یہ کھولنے والے چور کی چوتھا نظر امیر سنت سے ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، وہ کھول لیتے ہیں. ان کے پاس ٹیکنیک آتی ہے کہ یہ موبائل فون آن ہو جاتے ہیں، چور جو چورو نظروں. اس میں پھر مطلب کہ آپ کی کئی سیکریسی موبائل میں ہوتی ہیں. تو مہربانی کریں اس طرح کی کوئی بھی چیز کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں گم ہو جائے گا یا کھو جائے گا تو ضرور اس میں احتیاط کرنے کی میری درخواست تو آپ سے یہ ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا وہ اس سے پہلے کچھ وہ آپ نے ایکسپائر ڈیٹ کے تعلق سے دواؤں کے ارشاد فرمایا، اس میں مجھے مشورہ یہ دینا تھا کہ اب جیسے کہ ہمارے یہاں تو نقلی دواؤں کی بھرمار ہے جی، تو اب یہ ایکسپائر ڈیٹ یا مینوفیکچرنگ ڈیٹ یہ بھی تو وہ اسٹیمپ لگ جاتی ہوگی. ممکن ہے حضور، ممکن ہے. اسی صورت میں اس میں سوائے اس کے کوئی اور مشورہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ میڈیکل اسٹور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس حوالے سے مشہور ہوتے ہیں. بالکل درست فرمایا ہے نا کہ اس کی دوا جو ہے پرفیکٹ ہوتی ہے، ایک گڈ ول ہو جاتی ہے کسی کی. تو ایسا میڈیکل اسٹور ڈھونڈا جائے. تھوڑی سی سر وہاں دوائیں جو نا حضور تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں مگر آپ کو تسلی ہوگی. یہ بھی آپ پتہ ہے تھوڑی سی وہ مہنگی ہوتی ہیں تو لوگ اس طرف نہیں جاتے کہ نہیں یار یہ مہنگی دیتا ہے. یہ مہنگی دیتا بھی ہوگا لیکن اوریجنل تو دے گا آپ کو اور چیزیں وہ دے گا. بعض علاقے بدنام ہیں اس کام کے لیے، یہاں نقلی دوائیں بہت بنتی ہیں، بہت بکتی ہیں. تو وہاں کا چٹکلا یہ ہے کہ وہاں اسی علاقے کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کی کہیں کوئی منگنی کی ترکیب ہوئی، پھر وہ پتہ چلا منگنی توڑ دی. اب خدا جانے اور بھی آزار ہوں گے، اسباب ہوں گے، تو یہ کہا گیا کہ یہ اس علاقے کا ہے، نقلی ڈاکٹر ہے.
या नकली होगा, ये नहीं चाहिए, MBBS चाहिए। हालांकि वो बेचारा मैं जानता हूँ कि वो डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर था, उसको बेचारे को सदमा हुआ और इस वजह से हवाले से शायद इसी वजह से वो इलाका ही छोड़ दिया उसने, मकान की कहीं और तरकीब कर दी। फिर अब तो वो शादी हुए कई साल हो गए उसको। ये मतलब बात अल्लाह के बदनाम है। तो फिर ये कि वो तो बद से बदनाम बुरा, तो उस इलाके का रुख ना करे दवाओं के लिए। यही समझ में आता है कि वहां लेगा तो मुंडा जाएगा। तो ऐसे हैं मतलब मेडिकल स्टोर सुने जाते हैं कि फुला फुला यहाँ मतलब है ना कि सही दवा मिलती है। यही एक कोशिश ये की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कमोबेश शायद 50% या पता नहीं इससे भी ज्यादा नकली दवाओं का रेशो है। और ये यहाँ तक कि एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो यानी कोई उसके सामने कोई वाकया हुआ था शायद कि वो इतनी सारी गोलियां खाली खुदकुशी के लिए किसी ने, नींद की है जो ये ज्यादा डोज है तो आदमी मर जाता है, ऐसा कुछ होगा ना, तो खाली इतनी सारी बच गया। इसलिए वो उसी इलाके की दवाएं थी, नकली थी। चलो ये तो प्लस है कि उसकी जान बच गई, लेकिन दवाओं की नकली की ये भी एक चुटकुला है ना कि मिसाल है कि ये ऐसे जालिम लोग हैं। अरे ये लोगों की जानों से खेल रहे। एक साहब ने मुझे किसी और मुल्क में बताया था कि मैं वो उधर के कराची की दवाएं इस्तेमाल करते मेरा ठीक ही नहीं होता था यार। अब जब यहाँ से आकर लिया ना तो अब समझ में आती है दवाएं, अब मेरी तबीयत बेहतर है। तो इसलिए बस वो सही टारगेट पे नहीं पहुंचा होगा किसी अच्छी दुकान वाले के पास कि जहाँ वो सही। लेकिन अब हर मेडिकल स्टोर वाला गलत ही दवाएं बेचता ये जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब ये कि बातों में गुडविल होती है, मशहूर होते हैं, या आप जिसको जानते हो। लेकिन ये बेचारा जो है ना मेडिकल स्टोर वाला, ये 100% होनेस्ट होगा, तब भी उसको कोई मतलब गलत दवाएं पहना देता होगा, तो ये इस तरह भी बेचारे फंस जाते होंगे। तो वो जो मशहूर जो दुकानें होती है ना, तो इनकी सारी तरकीबें होती होंगी कि लेते भी ऐसों से ही होंगे दवाएं कि जो मतलब परफेक्ट हों। अल्लाह पाक शिफा देने वाला है, दवा क्या करेगी, जब रब चाहेगा तो शिफा होगी। ताम ये कि हमें जो भी एक तरीक़ेकार है और दुरुस्त तरीका है उस पर ही गामज़न रहना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जैसे डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर कोई उनके मोबाइल हाथों में है, तो हर कोई अपनी सेल्फी पिक्चर बनाता है और किस डिफरेंट एंगल से हर किसी का एक डिफरेंट पर्पस होते हैं। तो मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि हमारी अगर कोई सेल्फी बनाता है उसके बिहाइंड नीयत क्या अच्छी हो कि जिससे वो सेल्फी बनाना भी उसके लिए कार सवाब बन जाए। और ये जो मर्ज़ है ये डेफिनेट बात है कि ये इतना ख़तरनाक है कि ये हमें खुद पसंदी और बाज़ का मौत की तरफ भी ले जाता है सेल्फी बनाना। तो इसमें रहनुमाई फरमाएं कि हम यंगस्टर के लिए, जो आने वाले तुलबा हैं, जो यूनिवर्सिटी के तुलबा हैं, उनके लिए कि ये इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, अगर मजबूरन बनानी ही है या कोई, तो इसमें अच्छी नीयतें क्या हों। माशाअल्लाह। अब मसला ये कि ये जुनून की हद तक इसका शौक़ है, जिससे कि आज से नहीं ज़माने से सिगरेट की डिबिया पर कैंसर के मरीज की तस्वीर, इससे कैंसर होता है वगैरह सब लिखा होता है, लेकिन फूंक रहे होते हैं, तो पता होता है फूंक रहे होते हैं। ये गुटके दबा के मुंह में रखते हैं, गुटके खा रहे हैं ना, पान गुटके और तरह तरह की उल्टी सीधी पुड़ियाँ, ये देख रहे होते हैं कि ये मर गया, वो मर गया, उसका मुंह फट गया कैंसर से, और बड़ा बेचारा मुंह छुपा छुपा कर रखता था और आखिरकार दम तोड़ गया। ये इनको पता होता है, ये फिर भी ये गुटके छोड़ते नहीं है। पता नहीं क्या एक लत है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो सेल्फी तो शायद इन दोनों से भी 2 कदम आगे हो। ये इतना मतलब है देखे है कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो भी ये काम कर लेते हैं, को आता होता है, बात करने की सुध नहीं होती इनको, वाकई ये काम कर लेते हैं। इतना ये
हमारी नस नस में उतर गया है। अब ये कि अच्छी बुरी नीयतों का तो मौका माहौल के हिसाब से ही होगा। अब पहले मैं नहीं बनाने देता था अपने साथ सेल्फी, कोशिश करता था कि टालूं, पता नहीं कौन बना ले और कोई ये वांटेड हो या चीटर हो और मेरी यूं फिर कंधे पे हाथ रखवाता है, वो सर पे हाथ रखवाता है, तो गले मिलकर यूं देख के करेगा, वो हाथ चूम के यूं करेगा, ये सीन पार्ट कर रहे होते हैं, समझे। तो अब ये क्या पता नहीं क्या क्या किसी को मुसा देगा या उतार देगा लंबे में, देखो मुझ पर कैसी शफकत फरमा रहे, अपना हाथ सर पे रखा हुआ है, तो इनका खास वो चाहिए था और 5-15 लाख लेकर ये जाओ जाए करते हो, ताज्जुब नहीं है, अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। खैर मैं कतराता था, वांटेड हो, पुलिस ढूंढती हो, अच्छा अच्छा ये इसकी तरकीब है, फिर मेरे पास आप पहुंचे कि भाई ये बताओ मैं कैसे बताऊं। तो एक चुटकुला बताया मैंने इस तरह कि ये मैं बहुत कतराता था, लेकिन मैं थक गया। अब मैं ये नियत करने की कोशिश करता हूं कि मैं इसकी दिलजोई कर रहा हूं। अब पता नहीं ये नियत वैलिड है या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं है। तो बहरहाल और क्या करूं मैं, इसका दिल तो खुश होता है करने। अब कोई पूछता कोई नहीं पूछता है, कोई बोलता है देख के ऊंचा देखो, ये कहाँ होता है मेरे साथ, खासकर एयरपोर्ट वगैरह पर, क्या कुल इख्तियारात होते हैं हर एक को। बाद में तो बड़े बड़े शख्सियत आ रही होती है इधर से उठकर, अब ये ड्यूटियां छोड़ के बेचारे पहुंच जाते हैं। एक सेल्फी पहले होता था, पहले भी मुझसे लोग मिलते थे, मैं जाता था, बच्चा बीमार है, अम्मी बीमार है, दुआ कर दीजिएगा, ये परेशान है, आओ एक सेल्फी। अब वो दुआ का बोलना भी तकरीबन भूल गए, छोड़ दिया, ये है सेल्फी। और मशहूर आदमी के साथ सेल्फी लेने से मतलब आदमी फिर हुस्न वो क्या हुब्बे जा से बचना थोड़ा दुश्वारी रहता है। ये खाली मेरे साथ नहीं करते, ये वजीरों को भी नहीं छोड़ते होंगे, वजीर आजम भी अगर हाथ में आ जाए तो नहीं छोड़ेंगे। तो मशहूर क्रिकेटर होगा, मशहूर एक्टर होगा, ये बस सबके साथ यही करते होंगे। ये क्वालिटी होती है कि उनको मजा आता है, एल्बम बनाते होंगे अपना, इसके साथ उसके साथ इसके साथ। बहरहाल एक हुब्बे जहाँ का भी खतरा और टाइम भी ज़ाया होता है, और कोई इसमें कोई खास के आम भी कोई यानी कि दीनी मकसद इन चीज़ों का समझ में आता नहीं। अगर किसी से वाकई अकीदत है तो उससे सेल्फी ये अकीदत का हिस्सा है क्या? पहले जैसे ऑटोग्राफ होता था ना, पहले ऑटोग्राफ था, और अब ये है कि अब ऑटोग्राफ तो अभी बहुत टाइम लगता है, अब ये सेल्फी है जिसको शायद कोई यादगार के तौर पर रखना चाहे। और बिल्कुल जैसा आप अपने बारे में फरमा रहे हैं, ये एक रुझान है, अगरचे फेम लोगों के साथ जो फेम लोग होते हैं, मशहूर लोग होते हैं, उनके साथ लेने का रुझान है, लेकिन मजहबी लोगों के साथ इतना रुझान नहीं था। अब मजहबी लोगों की तरफ, जैसा कि मैंने आपको भी देखा है कि जिस तरह आप होते हैं तो अब बच्चों को भेजा जाएगा कि ज़रा बना लो, ये हो, लोग नौजवान आ जाएंगे, और ऐसे ऐसे नौजवान वादों आते हैं कि जिनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये ना आवे करीब तो अपने को लगे कि शायद ये मजहबी लोगों को पसंद नहीं करता होगा, लेकिन ये जैसे करीब आता है ना, बोलता है यार एक सेल्फी यार, उसके कपड़े भी आधे होते नहीं पता, ऐसा बेचारा अजीब गरीब होता है, लेकिन इसकी मोहब्बत देखने जैसी होती है। तो ये कुछ इस तरह का रुझान है कि फेम लोगों की तरफ रुझान बढ़ जाता है। तो अब ये होता है कि यार मेरी इनसे मुलाकात हुई, बाद वक्त ये होता है कि यार मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैं इनको जानता हूँ, बोलते नहीं बोलते ये पता नहीं, यार मैं एयरपोर्ट पे था मेरी मुलाकात हो गई, फला जगह था मेरी मुलाकात हो गई है। बाद को सबूत के तौर पे भी रखना पड़ता होगा, भाई नहीं भाई तेरी कहाँ से मुलाकात हो गई, देख देख मेरे मोबाइल में। ये मैं जा रहा होता हूँ जब एयरपोर्ट में फ्लाइट तक बस में, वहाँ भी मैंने देखा कि मैं जानता नहीं होता इनको, ना हाथ भी नहीं मिलाते, खाली यूँ लगे होते हैं। ये मुझे बाद लोग तो लाइव फेसबुक पे दे रहे होते होंगे, ये भी हुआ है कि कभी हाँ कि आ गया भाई, फोटो भी आ गई कि ये लाइव दे रहे होते, हाथ मिलाएंगे, कोई और बना रही होगी या बना रही होती है, ये भी होता है। और ये इसका शोहर आएगा तो हाथ चूमेगा तो मिलेगा तो मुस्कुराएगा तो उधर देखेगा तो। अब या वहां तो खुली इख्तियारत होते, आदमी बचकर जाएगा मदीने, भाग ही नहीं सकता।
ये शोहरत बाजों का यूँ आजमाइश पे डाल देती है। तो मैं तो तरकीब बन जाती है बाजू, बल्कि अक्सर हो जाता है, देर होती है ना तो या तो किसी के ऑफिस में पनाह मिल जाती है, जान पहचान तो निकल ही आती है वहाँ एयरपोर्ट पे। अपने कराची के एयरपोर्ट की बात, हर जगह तो नहीं है इतनी, तो यहाँ कराची के एयरपोर्ट पे खुद ही बाजूबात ले भी जाते हैं, आइए आइए करके बिठा देते हैं मेरे को, और हम तरकीब बना लेते हैं कि बच जाएं अवाम के हुजूम से। अच्छा, या फिर हम क्या करते हैं कि जैसा फ्लाइट लेट हो जाए, ये भी हमारे साथ होता है बाजू का, फ्लाइट लेट हो, अब क्या करें, अब तो सेल्फी शाह जिंदा नहीं छोड़ेंगे अपने को। तो हम लोग जैसे कि ये मुख्तलिफ ममालिक की, ये कराची का एयरपोर्ट तो छोटा है, बाहर बड़े बड़े एयरपोर्ट भी हैं। तो जैसे कि अब वो कोई अरब दुनिया के लोग हैं, या इंडोनेशियन है, या अफ्रीकन है, इस तरह का देखते हैं कि ये कहाँ बैठते हैं, तो किसी को मना तो होती तो उस तरफ जाकर इन काले पीले लोगों में हम कहीं जाके बैठ जाते हैं, तो वहाँ कोई नहीं आता। ये हिकमत अमली है। दूसरी शख्सियत भी अगर कोई सुन रही हो ना, तो इनके लिए काम का थोड़ा छोटे बाप का बनना पड़ेगा। अपने मुल्क वालों को छोड़कर किसी और मुल्क वालों में बैठ जाओ तो वो नहीं जानते होते, जबकि किसी के पीछे इतना हो जितना आपके पीछे है। वरना आदमी से बात औकात ऐसी जगह जाकर बैठ जाता है जहाँ लोग उसको जानते हो। बाहर मुल्क में भी जानने वाले तो एयरपोर्टों पे मिल ही जाते। दावत इस्लामी है, मदनी चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह। असां जो कमु आहे रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग जो, तो असां वटि घणा कस्टमर अहिड़ा अचनि था जिन जो फ़ोन जी क़ीमत हुई थी 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया, ने उनमें मसलो हुयो तो नंढो सो। असांजो तो कमु आहे न, असां सिखिया इनकम के बड़ा घणो टाइम लॻाया, ने हाणे इनमें अहिड़ो आहे कि अब असांजो नंढो सो कमु आहे, बोनट खोली आहे न उहो फ़ोन ओके थी वियो। हाणे आई बताड़ो कि असांजी रहनुमाई फरमायो कि 2.5 लाख रुपए वारो फ़ोन जो कस्टमर असांखे 3000 4000 2000 5000 ख़ुशी ख़ुशी ॾिए थो, क्योंकि उनजो 2.5 लाख रुपया उभो थी वञनि था। हीअं बताड़ो हाणे कि 3000 4000 असां वटि जाइज़ आहे, रहनुमाई फरमायो असांजी कि इनमें कुरो आहे, पंहिंजे लाइ कुरो आहे, पंहिंजो कुरो सिस्टम आहे, पाण इनखे कीअं लाया। तो खबर ने ख्वाहिश होता है इसमें। वो खुशी खुशी इसलिए दे देता है कि आपने उसको बताया इतना है। अब वो 2 नट खोलने में मोबाइल की अगर रिपेयरिंग की कीमत ही बनती है 100-200 रुपये, तो अब आप 3-4 हज़ार बताएंगे तो ये गलत होगा और जायज़ भी नहीं होगा इस तरीके से लेना। तो जो बनती है वो उसको बताएंगे, तो तय करना पड़ेगा। जी तय करना पड़ेगा। बाज़ इसके सामने थोड़ी घुमाएंगे, यूँ घुमा के दे देंगे, ले 5000 दे दे, तो ही थोड़ी देगा, वो भेज देते। आप नहीं धक्के खिलाएंगे, 2 दिन के बाद आना, 1 दिन के बाद आना, शाम को ले जाना, फिर जाके ये चुपके से वो कर लेंगे। ये करते होंगे नफसियाती तौर पर। हाँ, तो बहरहाल ये कि अगर जो उजरत मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि जो एक आम मामूल हो, रवाज हो, उर्फ हो कि भाई इतने से काम की 200 या 300 उजरत बनती है, अब उसके 3-4 हज़ार रुपये इस तरह मतलब खींच लेना, ये दुरुस्त नहीं है। मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं, और ये भी तय होना चाहिए पहले से। एक ये बगैर तो कि पता है कि उजरत मिलेगी, उसको पता है उजरत देनी है ना, अंडरस्टूड है। तो अब ये कि उजरत तय करना ये वाजिब है, उजरत तय नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। एक सूरत होती है कि जैसे गाड़ी हो, मोटरसाइकिल है या मोबाइल है, इस तरह के कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, जब आप उसको किसी इसके मैकेनिक के पास, इसके डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो जब तक उसको बाकायदा देखेगा नहीं, इसका चेकअप नहीं करेगा, तो वो कैसे बताएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और मैं कितने पैसे, क्योंकि ये तो देगा ना जैसे कि यार ये ठीक है आप ये दे दें, मैं इसको देखकर आपको बताता हूँ, तो वो एट अ टाइम तो शायद नहीं बता सकेगा। वो ग्राहक भी होते हैं, जो भी सूरत बन सकती है। अब उसने उसको देखने के उसको लगा कि यार ये 4 स्क्रू का काम है, या मतलब कि ये छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब अगर अब उसको बोला है वो मैंने आपका मोबाइल चेक कर लिया है, ये ठीक तो हो जाएगा मगर इतने पैसे लगेंगे, यही सूरत बनेगी ना उजरत। नहीं, असल में वो ये फरमा रहे हैं कि ऐसा होता है कि जैसे तय करने वाली बात हुई ना, तो बाज़ औक़ात वो तय करना यूँ मुमकिन नहीं होता कि जब तक खोलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो उसमें भी फिर इसी तरह की धोखेबाजी बाज़ औक़ात करते हैं कि 4 स्क्रू का काम निकला और कहा कि भाई ये तो बड़ा काम है, इसमें वक्त लगेगा, और फिर उसको एक आधा चक्कर लगवाया
और फिर इसके बाद उसके पैसे खड़े कर लेते हैं। मुफ्ती साहब ऐसा कुछ भी नहीं बोला, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत काम है। बोले मैंने आपका मोबाइल चेक कर लिया है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, आपको 2-2.5 लाख रुपए का मोबाइल है, टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह 5,000 रुपये खर्च होगा, हो जाएगा। और सामने वाला पूछेगा भी नहीं कि 5,000 रुपये क्यों खर्च होगा, 2.5 लाख का मोबाइल रिकवर हो रहा है। अब काम उसका है, मुझे पता है 5 रुपये का भी काम नहीं है, मगर वो 5,000 रुपये बगैर कुछ ही इधर उधर की बात करे बगैर बोल देता है। तो ऐसा करना आई थिंक कि खैर खाई तो नहीं हुई लोगों के साथ, धोखा है ना, या यानी उसका वो धोखा दिया जा रहा है, गबन फ़ाहिश है ये जो इससे उजरत ली जा रही है। यानी कभी भी कोई शख्स इस तरह नहीं देगा कि 5 रुपये का काम नहीं है, उसकी जगह 5,000 रुपये उससे ले ली, तो 2.5 लाख का मोबाइल हो या 5 लाख का मोबाइल हो, आह करके ही पैसा देगा वो, वाह करके कहाँ देगा 5,000 रुपये भी। पुर्जे बदल देते होंगे, पुर्जे नहीं होते, मोबाइल ही ना बदल देते हो, ये भी कोई भरोसा नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ उसमें तब्दीलियाँ करना, ये पुर्जा ख़राब है तो वो पुर्जा ख़राब है, ख़राब नहीं होता, मैं इस कंपनी का लगाऊंगा और फिर लगा दिया तो घटिया वाला। इस तरह तरह से वो धोखाबाजी का माहौल तो है। क्या मोबाइल, क्या गाड़ियाँ, क्या स्कूटरें, सब में ये उस पैसे खींच रहे होते हैं, तो मौत याद नहीं होती, ये सारे निकल जाएंगे पैसे, झूठ धोखा। सब के लिए अल्लाह तौफीक दे, हम सब के लिए मदनी फूल हैं, हम सबको समझ, क्या मोटरसाइकिल वाले, क्या मैकेनिक, चश्मा, क्या दर्जी, पापा चश्मे, सब मतलब तरह तरह से ये इसमें मतलब धोखों में, गुनाहों में पड़े हुए। जो चश्मे की फ्रेम सही करनी होती है कि स्क्रू का काम नहीं होता, उसमें भी चश्मे वाले को बेहतर कर देते। मतलब औरतें क्या मारती, अंगूठी सेट करनी है, किसी का कोई जेवर सेट करना है, किसी क्या सेट करना है, वो रख लेंगे, 2 दिन का बाद का टाइम देंगे। अब सिवाय इसके कि अब डॉक्टरों पर भी तो भरोसा करके डॉक्टर भी तो चला ही देता ना लेबोरेटरी की तरफ, ये सब। तो ये एतमाद तोड़ने वाला जो काम है ना, और एतमाद लोगों का तोड़कर और इस तरह की चीज़ें करके अब 2 पैसे कमा लेने से फिर बंदा बोले कि मैं खुशहाल हो जाऊँ, हुजूर कैसे हो सकता है ये? बहुत यार मुश्किल तरीन मामलात हैं। तो दर्जी की बात थी ना, तो तलबा किराम में खुसूसी मदनी मुज़ाकरा, मैंने कहा ये तुम लोग टेक्निकलर पीसेस जो लगाए जाते हैं कुर्ते वगैरह में, ये क्या वो थान रखे होते हैं वहाँ, या कट पीस की जो गठड़ियाँ रखी होती हैं, ये दर्जी के पास के वो उसमें से निकाल के अपना हक हलाल का लगाएगा, तो कहाँ से लगाएगा यार? दूसरों का तो इससे ये कट मारा, इधर से ये कट मारा, फिर आपको लगा दिया, उसका इसको लगा दिया, खुदा बेहतर जाने क्या करते होंगे। क्योंकि बाज़ टुकड़े तो वो होते हैं जिसका उर्फ होता है कि ये लेते ही नहीं है लोग, वो टुकड़ी लगा दी वो अलग बात है, बड़े बड़े पीस भी तो लगाते हैं, बिल्कुल यूँ लाइन सर टुकड़े लगाए हुए होते हैं। दर्जी लेता है आपसे, बोला नहीं, जब नहीं लेता उसका मतलब लाता कहाँ से? ये भी एक सोचने की बात है। तो अपने को तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, वो सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर एक बड़ा दुखियारा या हमदर्दी शायद करनी चाहिए इसके साथ, या जो आप जवाब दें। कहते हैं कि अब जो लिखा है कहते मेरे लिए मौत की दुआ कर दें, क्योंकि मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं, तालीम मेरी अधूरी, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, रोज़गार के काबिल नहीं, काफ़िले में या मदनी कोर्सेज या दावत इस्लामी तो घर वाले मुझे इजाज़त नहीं देते और इज्तिमा में आने की इजाज़त नहीं देते। मुझे लगता है कि मेरा मुस्तकबिल गुनाहों भरा होगा और मेरी वजह से मेरे ख़ानदान को बहुत नुकसान होगा, बेहतर नहीं कि मैं मर जाऊं। अब ऐसा कहना कैसा? आखिर में ये लिखा है, जब दावत इस्लामी नहीं थी या जिनको दावत इस्लामी मुयस्सर नहीं है, क्या गुनाहों से नहीं बच सकता? जितने औलिया किराम हुए क्या सब दावत इस्लामी वाले थे? जितने उलमा हैं जो दुनिया को, उम्मत को गाइड कर रहे, रहनुमाई फरमा रहे, क्या सब दावत इस्लामी में आकर मतलब इन्होंने सीखा है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि दावत इस्लामी के इज्तिमा में नहीं आ पाते, मदनी काफिले के मुसाफिर नहीं बन पाते तो अब बस गुनाहों में पड़ जाएंगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। शुरू में हम भी कहाँ, दावत इस्लामी कहाँ थी, ज़िंदगी तो गुजार ही रहते ना।
तो ये सोचें नहीं होनी चाहिए और अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए। जब मौत की दुआ इसलिए मांगते हैं कि अल्लाह मौत दे सकता है, वो तो देता ही है, देनी है, मौत तो आनी है। तो जब हम मौत मांगते हैं इसलिए कि अल्लाह देगा मौत, तो अल्लाह पाक कोई अच्छे असबाब अता फरमा दे भी तो दुआ मांगी जा सकती है। कि मरीज मर जाए, ये दुआ मांगने से बेहतर ही नहीं कि मरीज सेहतमंद हो जाए। अल्लाह पाक तो ये दोनों काम कर सकता है, हर शय पर कादिर है। तो इसलिए अल्लाह पाक से ये दुआ मांगे आप कि मेरी कोई ऐसी सूरत बन जाए कि मेरी अक्ल भी मजबूत हो जाए, मैं फला कोर्स भी कर लूँ, अपने इल्म दीन भी हासिल करूँ, मुझे दीन के कामों में शरीक होने की भी इजाज़त मिले। माँ बाप नहीं छोड़ते, इसकी भी बाज़ औक़ात वजह होती है। घर में रफनेस बहुत होता है बंदे में, बात बात पे लड़ना झगड़ना, तू तड़ाक, गाली गलोच तक। इसमें हो सकता है कि माँ बाप बदजन हो या कोई ऐसी सूरत हो या कुछ भी ना हो, तब भी मतलब अरे माँ बाप को भी संभालना ही है, छोड़ना तो है नहीं। मोहब्बत से प्यार से ऐसा माहौल बनाए कि वो आपको छोड़ दें, इजाज़त दे दें। वरना ये कि अब तो ये दूसरे ज़राए मदनी चैनल भी घर में नहीं चलाने देते, कोई बात नहीं चलाने देते, मोबाइल तो है ना आपके पास, ये भी नहीं है। ये तो शायद हज़ारों में से किसी के पास नहीं होता होगा। अगर मोबाइल है तो मदनी चैनल उस पर भी देखा जा सकता है। और भी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर ख़जाना भरा पड़ा है इल्म का, उनसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। तो इसलिए वो मौत ना मांगे। अलबत्ता ये कि जिसको ये यकीन हो या ज़न्ने गालिब हो के गुनाहों से बच ही नहीं सकेगा, तो भी उसके लिए यही हुक्म है कि वो यूँ दुआ मांगेगा कि जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है तो ज़िंदगी अता फरमा, जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मौत अता फरमा। मगर ये भी होता सारा जज्बाती मामला। अगर कोई आ जाए ना कि जहर का इंजेक्शन एक ही है मेरे पास, अपने लिए रखा था, मैं ईसार करता हूँ तुझे लगा देता हूँ, फिर वहाँ पता चल जाएगा। मैंने ऐसे कहा तो आपको तफन्नुन के लिए कि मरने के लिए कोई तैयार होता नहीं है। तो मैं एक बुढ़िया का किस्सा सुनाता हूँ, कभी कभी मैंने पढ़ा था किताब में, आए तो मन गढ़त समझ में आता है। और बुढ़िया कहती थी कि ऐ मलकुल मौत कहाँ है, मुझे पकड़ ले। तो कोई नीचे का घर मतलब होगा तो वो लड़के बाले जो मोहल्ले के वो सुनते होंगे, तो बोला आज तो बुढ़िया की हसरत पूरी करते हैं। इन्होंने कोई वो गाय पकड़ी और उसके सर पे कोई कनस्तर या कोई बाल्टी डाल दी और उस गाय को बुढ़िया के कमरे की तरफ रुख कर दिया और एक ने दुम पकड़ ली पीछे से धकेलते हुए, उसको भेज दिया। कोई नजर नहीं आ रहा था, खाली छुपा हुआ था, रात का टाइम था। तो अब वो उसने गाय नजर आ रही थी, बुढ़िया ने देखा ये क्या आ गया, उसमें तो बाल्टी उल्टी थी ना। तो फिर वो दुम पकड़ कर जो शरारती लड़का था उसने आवाज़ दी, मुझे मलकुल मौत कहते हैं, आपने याद फरमाया था, मैं आ गया, मैं आ गया। अब ये बुढ़िया ने सुना तो उसके तो होश आवाज उड़ गए। बोला मेरी तबीयत तो ठीक है, ये मेरी बेटी जो उस कमरे में ये सख्त बीमार है। तो यूं मौत का बोलते हैं, मरने के लिए तैयार होना ये मुश्किल है और मुश्किल ही रहना चाहिए। अपने हाथों हलाकत में नहीं डालना। तो इसलिए अल्लाह पाक से बेहतरी की तमन्ना करें। हम मौत की तमन्ना करें काहे को, मौत आए तो फिर तमन्ना है कि मदीने में शहादत मिल जाए, आका की कदमों में जलवों में बक्की शरीफ मिल जाए। तो इस तरह मतलब है कि अच्छी मौतें मांगने में हरज नहीं है। ताहम यह कि तकलीफ़ों से परेशानियों से तंग आकर ये कि बेजार होकर मौत ना मांगे। साथ में परेशानियां भी बयान की है। जी हाँ, परेशानियां काफ़ी बयान की इसने, अल्लाह आसानियाँ पैदा कर दे। अच्छा हुजूर, ये इरशाद फरमाइए कि ये कहना कि मुझे मौत का यकीन है, मरना तो है, मगर मैं अभी मौत के लिए तैयार नहीं हूँ मरने के लिए, यानी उसकी शायद यहाँ पर अगर ये है नीयत कि मैं मतलब कि अभी मेरे आमाल नामे को मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी होती है कि मैं इस तरह मतलब मर गया तो मेरे होगा क्या, आगे आखिरत का खौफ। तो ऐसा अगर कोई शख्स सोचता है या कहता है कि मुझे मरने का यकीन है मुझे मरना है, लेकिन अभी मेरी मौत की तैयारी नहीं है, ये तो कोई आप जैसा नेक आदमी बोलता होगा। बाकी तो मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। ये इतने बैठे हैं, आप
पूछ लो कौन हाथ उठाएगा कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ? कोई भी नहीं। हाथ उठाएगा उस पर भी यकीन नहीं आएगा अपने को, है ही नहीं, मतलब कौन तैयार है? तो इसमें क्या हर्ज है अगर कोई यूँ बोलता है कि यार मौत से डरता हूँ, मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो यार मलकुल मौत पूछेंगे नहीं कि तैयार हो, रेडी हो, 1 2 3, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मौत एकदम आ जाएगी, अचानक आ जाएगी। इसीलिए तो तैयार रहना है। पता होता तो फिर तो और कुछ बात होती ना, पता ही नहीं हमको। इसी को फरमाया ना कि मौत को वैसे हर कोई नापसंद ही करता है, लेकिन बवक्ते मौत जब नज़ात आ रही हो तो उस वक्त इसको नापसंद ना करे, बल्कि अब अल्लाह से मुलाकात को पसंद, अल्लाह की मुलाकात को पसंद करे। ये तो है, ये तो उस वक्त ना जब मौत सामने आकर खड़ी हो गई। और ये खुश नसीबों का हिस्सा है जिस पर अल्लाह पाक बेशक अता फरमाए। तो दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक अता फरमा दे। इस तरह की हदीस है ना, ये हदीस है इस तरह की ना। हाँ बिल्कुल, हदीसों में दुआएं भी कि तुम में से कौन है जो अपने रब से मुलाकात। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह दुआएं मनकूल हैं। रब से मुलाकात के ताल्लुक से भी हदीस। बिल्कुल बिल्कुल दुआएं मनकूल हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में अर्ज करो, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी लज़्ज़तन नज़र इला वजहिकल करीम व शौक़ इला लिक़ाइक। ऐ अल्लाह पाक मुझे अपने दीदार की लज्जत और अपनी मुलाकात का शौक़ आमीन अता फरमा। हवाला नवादिरुल उसूल अल जुज़ु सानी, पेज नंबर 45। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तार को दे दे शौक़े मुलाकात, तू तार को दे दे शौक़े मुलाकात, तू कुर्ब अपना कर दे अता या इलाही, तू कुर्ब अपना कर दे अता या इलाही। हो कदमों में सरकार के जब मेरा सर, हो कदमों में सरकार के जब मेरा सर, तू ईमान पे उस दम उठाया इलाही, तू ईमान पे उस दम उठाया इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़ियाद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल का इस शेर के ताल्लुक से मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि ये किसी ग़ज़वे के मौके पर सख्त ज़ख्मी हो गए। तो किसी ने पूछा होगा कि आपकी अब तमन्ना क्या है, तो ये आगे घिसटते हुए बढ़े और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर रख दिया, यही तमन्ना है। तो फिर उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया। इस तरह का एक वाक़या है। शहादत का वक्त करीब था तो इन्होंने कहा कि कोई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दे दे कि इनका ज़ियाद दुनिया से जा रहा है। तो जब उन्हें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अर्ज़ की गई तो आप वहाँ तशरीफ़ लाए जहाँ आपने ये शेर भी लिखा है, लबे सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। ये मौलाना हसन रज़ा खान का शेर है। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इरशाद फरमाया, ज़ियाद आँखें खोलो हम आए हैं। आपने अपनी आंखें खोली, दीदार मुस्तफ़ा से आंखें ठंडी की, ज़ोर ताकत जमा की और अपने आप को सरकार के कदमों में डाल दिया। और कुछ यूँ शायद फरमाया था, यूँ कहा कि मतलब मैं अल्लाह के
रब होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ, वो मैं कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो रब्बिल काबा है ना, इस तरह का कुछ इन्होंने नारा लगाया था। कुछ इस तरह रिवायत मिलती है और उसमें इनका दम आका के कदमों पर आया। नजम की ये खुदा आरज़ू है, आशिक ज़ार की आबरू है, मौत के वक्त सर उनके कदमों में वो ईद होती रहे, दम निकलता रहे, ईद इतना तो करो करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करो करना ए चश्मे करीमाना, जब जा गुनाहगार की है शाह ज़माना, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना, जब जान लबों पर हो आका, जब जान लबों पर हो। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, मदफल बने हमारा सरकार का मदीना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले आका, मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब नज़्र का वक्त आए दीदार अता करना, जब जान लबों पर हो आका, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, खुदारा अबाओ के दम है लबों पर, दमे वापसी तो नजारा करूं मैं, दमे वापसी तो नजारा करूं मैं, जब जान लबों पर हो आका, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो। इतना तो करो
میں کریم نا اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریم نا جب جان لبوں پر ہو آنکھ جب گنبدے خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس نجم کیا خدا آرزو ہے یہی عاشق زارے کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے جب جان لبوں پر ہو آقا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو سر بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو الحمدللہ 15 اگست پیر کو ایک بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے، اور 15 اگست پیر کو انشاءاللہ رات کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا وہ الحمدللہ نعت خوان اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مذاکرہ ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل میں چاہوں گا میرے سنت اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ اس مدنی مذاکرے میں نعت خوانوں کی شرکت آپ کے ساتھ ہوگی، تو یہ انشاءاللہ لائیو بھی ہوگا اور خصوصی بھی ہوگا، دونوں صورتیں ہوگی. سارے نعت خوانوں کو دعوت دینی ہے. آپ تو پھر آئیں گے انشاءاللہ. ظاہر ہے دعوت اسلامی نعت خوانوں کی بھی تو ہے نا. تمام نعت خوان اسلامی بھائی جو ہے وہ ضرور نوٹ کر لیں. پیر شریف کو آپ کو کہیں نہیں جانا، آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا خاص آپ کے لیے مدنی مذاکرہ ہے. سبحان اللہ. تو اپنے اس مدنی مرکز میں دعوت اسلامی کے تشریف لانا ہے. انشاءاللہ عمومی بھی ہوگا مدنی مذاکرہ اور خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. خصوصی میں یہ ہوتا ہے جس کو آف ایئر بولتے ہیں اور اس کو آن ایئر بولتے ہیں. ابھی جو ہو رہا ہے ہم اس کو عمومی، تو یہ آن ایئر عوامی. تو آن ایئر میں تو مطلب ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی. خصوصی میں جو حاضرین ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے تقریباً آج کل روز ہی ہو رہا ہے، ہفتے کو بھی تقریباً ہر ہفتے ہوتا ہے، خصوصی بھی ہوتا ہے. تو وہ نعت خوانوں کے لیے خصوصیت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ نعت خوان تشریف لے آئیں گے. اللہ کرے گا زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لے آئیں. آپ کی دنیا آخرت کا انشاءاللہ اس میں بھلا ہوگا، ہم سبھی کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. عشاء کی جماعت 9 بجے، تو انشاءاللہ 9:30 بجے آپ سمجھے کہ یہ کم و بیش انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا نعت خوانوں کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے سلام شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تشریف لائیں گے. ایک تعداد ہے نعت خوانوں کی جو دعوت اسلامی سے ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں. حضور ایک سوال آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عاشق رسول کو کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اس کا پیمانہ تو میرے پاس نہیں ہے.
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वैसे भी यानी कि नवास रसूल भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, और यानी कि इनके तो फ़ज़ाइल बहुत सारे हैं ना। और अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना, जन्नत के नौजवानों के सरदार भी हैं और फूल भी हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो बहुत सारे इनके तो फ़ज़ाइल हैं। तो इनसे मोहब्बत तो होनी ही चाहिए, और जितनी मोहब्बत हो इसका वो कोई पैमाना नहीं है, कितनी हो, जितनी हो इतनी कम है, बड़ा नहीं है और बड़ा नहीं है और बड़ा नहीं। तो जब गलबा मोहब्बत होता है तो ज़ाहिर है कि जिससे मोहब्बत होती है उसके नक्शे कदम पर चलना भी है, खाली मोहब्बत नहीं। इस तरह मैंने कल शायद अर्ज़ किया था कि मोहब्बत इतनी है कि ढोल बजा कर खूब नाचते हैं, आशूरे के दिन नमाज़ें नहीं पढ़ते। इमाम अली मकाम ने वो सरे अनवर अपना सजदे में राय खुदा में कटवाया, और ये आशिकाने हुसैन जो है लाठियाँ चला रहे होते हैं और फुदक रहे होते हैं रोडों पे। ये कैसी मोहब्बत है, वो जगह साई वाली बात है। तो इसलिए सबसे तौबा करें, मस्जिद आबाद करें। इमाम अली मकाम ने नमाज़ें पढ़ी, हमारे इमाम है, तो इमाम की पैरवी करनी होती है, हमें भी नमाज़ें पढ़नी है। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई अमल किया नहीं इमाम अली मकाम ने, तो हमें भी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई अमल करना नहीं है। गुनाह नहीं करते थे ये, हम भी गुनाह, हमें भी गुनाह नहीं करना है, गुनाहों से बचते थे, हमें भी बचना है। इस तरह मतलब ये कि हमें इनकी पैरवी करनी। तो बहरहाल बहुत मोहब्बत होनी चाहिए। फिर ये एक इनकी शहादत भी एक यादगार है, जितने इन्होंने सदमे उठाए करबला में। 18 तो ये ख़ानदान के अफराद थे, बाकी कोई 52 या 54 कोई और रफ़क़ा थे इधर उधर से जो तशरीफ़ लाए थे, आपके खुद्दाम और मोतक़ीदीन, कि ये भी शहीद हुए थे। जो तो यूँ मतलब ये कि ये सारे मतलब जो थे इन्होंने भूख प्यास बर्दाश्त की, और इतनी मतलब है क्या आजमाइशों से ये हजरात गुजरे, लेकिन उफ़ नहीं की, सब्र किया। अल्लाह पाक की बारगाह में कोई गिला शिकवा नहीं किया, बेसब्री का कोई मुजाहरा नहीं किया। तो हमें भी जब कभी मुसीबत आए, आजमाइश है, तो हमें भी कुर्बानियाँ देनी चाहिए, और हमें भी सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करना चाहिए। तो ये जो कुछ हुआ, इसके लिए मतलब कोई ऐसा अमल, ऐसा अंदाज इख्तियार ना किया जाए जिससे कोई तजदीद हुस्न हो, गम ताज़ा हो। अलबत्ता ये कि ये ऐसा वाक़या कि इसका गम एक होता है उम्मती को। तो सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फ़तह रज़विया जिल्द 24 पेज नंबर 488 और 188 और जिल्द 224 पर फरमाते हैं, कौन सा सुन्नी होगा जिसे वाक़या हायला करबला का गम नहीं, या उसकी याद से उसका दिल महसून यानी गमगीन और आँख पुरनम नहीं। हाँ, मसाइब में हमें सब्र का हुक्म फरमाया गया है, जज़ा फ़ज़ा को शरीयत मना फरमाती है। और जिसे वाकई दिल में गम ना हो, गम हो ही नहीं, वाकई दिल में गम ना हो, उसे झूठा इजहार गम रिया है। और कसदन गम आवरी, जानबूझकर गम वाला अंदाज इख्तियार करना, कसदन गम आवरी और गम परवरी खिलाफ रिज़ा है। अल्लाह की रिज़ा के जो मामलात हैं इसके ये खिलाफ है। अलबत्ता यह कि जिसे इसका गम ना हुआ, जिसे इसका गम ना हुआ उसे बेगम ना रहना चाहिए, बल्कि उसे गम ना होने का गम चाहिए कि इसकी मोहब्बत नाकिस है। जिसकी मोहब्बत नाकिस में, जिसकी मोहब्बत में फॉल्ट है, नक्स है, खामी है, उसका ईमान भी नाकिस, उसमें भी कमी है, खामी है, फॉल्ट है। तो जितनी मोहब्बत ज़्यादा होती है तो उतना मतलब है कि उसकी तकलीफ़, उसकी मुसीबत पर खुद ही गम दिल में पैदा होता है। ज़बरदस्ती गम पैदा करके रोना धोना या इसके लिए माहौल बनाना, ये हम सुन्नियों के यहाँ इसकी इजाज़त नहीं है। उलमा अहले सुन्नत खुदा आला हज़रत जो सुन्नियों के ताजदार हैं, इन्होंने हमें ये दर्स दिया है। लेकिन ये कि गम होना चाहिए,
ये आप फरमाते कि मोहब्बत की कमी की वजह से गम नहीं है, तो मोहब्बत बढ़ानी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, एक सवाल ये आया है कि बंदे को जब मुसीबत पहुँचे तो उसे सब्र किस हद तक करना चाहिए? बेसब्री का कोई पता तो दिया नहीं शरीयत ने, कहा आप बेसब्री कर लो थोड़ी, सब्र ही तो करना है। जहां तक यानी कि उसके जरा इख्तियार में उतना ही करेगा सब्र बंदा, तो उसको सब्र करना चाहिए। और सब्र का अज्र बहुत है, यहाँ तक कि बेहिसाब जन्नत में दाखिले की भी बिशारतें हैं, बेहिसाब मगफिरत की बिशारतें सब्र करने वालों के लिए। फिर ये कम बिशारत है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बिल्कुल इजी लिया ना, इजी नहीं है ये, अल्लाह जिसके साथ हो। अब यहाँ कोई अगर मोहल्ले का कोई एएसआई हो या किसी का एसएचओ किसी का दोस्त हो और उसके साथ जा रहा, क्या ख्याल है? पाँव जमीन पे नहीं पड़ेगा? है, जनता में कौन हूँ, एसएचओ से मेरी दोस्ती है, बंदा डरेगा। और भाई तो एक मैंने मिसाल दी दुनियावी आपको, तो जिसके साथ अल्लाह हो और अल्लाह ऐलान फरमा रहा है साबिरीन के साथ उन्हें सब्र करने, उसकी क्या शान हो। अब बेसब्री करके इतनी बड़ी मतलब है कि इतना बड़ा नुकसान उठा लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अल्लाह पाक हम सबको साबिरों के सरदार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सदके सब्र अता फरमाए। जब भी मुसीबत आए, परेशानी आए, गम आए, बीमारी आए, दुख दर्द जख्म, कोई चीज़ लॉस्ट हो जाए, जैसे कि वो मोबाइल चोरी हो गया तो घर में कोई डकैती पड़ गई तो बच्चा बीमार हो गया, हर मामले में सब्र सब्र और सब्र ही करना चाहिए। अल्लाह नसीब करे सब्र। अब यहाँ तो डंका बजाते हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो जाए कैसा डंका हो जाएगा, बहुत बड़ा नक्कारा दुनिया का वो बज रहा होगा, भाई इसका मोबाइल। अब कोई लाके देगा नहीं आपको, बस खाली हमदर्दी करेगा कोई। इसीलिए हमदर्दियाँ लेने के लिए लोग अपना इजहार कर रहे होते हैं, मेरा ये गुम हो गया, मेरा वो गुम गया, मेरी जेब कट गई। तो ये मुसीबत है ना, बंदा चाहिए कि इस पर सब्र करे, ना बेसबब किसी को ना बताए बिला वजह। हाँ ज़रूरत बताने में हर्ज नहीं है, ज़रूरत होती नहीं है, खाली हमदर्दी लेने के लिए बीमारी का बिला वजह बताएंगे, यार सुबह से सर में दर्द है। अब वो कौन सा मतलब वो आपने बोला तो दर्द निकल गया और उसको ले लिया, दर्द उठा के फेंक दिया, अच्छा तो है नहीं ना। हम बिला वजह बताते, सारी रात आज नींद सो नहीं सका हूं, इन्हें बिला हाजत हम बता रही हैं, आज तो यार बहुत थक गया हूं। हाजत नहीं होती, थक जाना ही प्रॉब्लम तो है, गुनाह नहीं है इस तरह की बातें जो बता देने में, लेकिन वो सब्र की मंजिल तो नहीं मिलेगी ना। सब्र तो इसी सूरत में मिलेगा कि मतलब किसी को बताए नहीं, एक को भी ना बताए। अब चंद को बता दिया, फिर बोलते बोलते थक गए, आवाज बैठ गई, सब्र ही किया हुआ है। तो अब ये सब्र नहीं है। दो चार को तो बताता ही आदमी, अपने क्लोज फ्रेंड को बताता है, बता ही चुका तो, और बिला जरूरत बताता है, तो ये सब्र की उससे डेफिनेशन से खारिज हो गया। हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तू अव्वल सदमे के वक्त सब्र करे और सवाब का तालिब हो तो मैं तेरे लिए जन्नत के सिवा किसी सवाब पर राजी नहीं। हवाला इब्ने माजा किताबुल जनाइज। ये अपने अव्वल सदमा ने, जैसे ही सदमा पहुंचा बंदा सब्र कर ले, है ना। अव्वल सदमा, जैसे ही सदमा आया, मोबाइल किसी ने निकाल लिया मिसाल के तौर पर, एकदम झटका तो ऐसा लगा कि बस वो जमीन आसमान एक हो गया। 2.5 लाख का मोबाइल चला गया, 3 लाख का मोबाइल चला गया किसी का, तो सदमा तो आप ये किसी को भी ना बताए, एक बात है, वो सब्र कर ले। अब ये किसका ने जो सदमा अव्वल सदमे पर सब्र कर ले, उसके लिए अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जन्नत के सिवा किसी सवाब पर राजी नहीं। सुभान अल्लाह।
हदीस कुदसी वो होती है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से अदा हो, फरमान अल्लाह पाक का हो, इसको हदीस कुदसी बोलते हैं। ये बस सब्र होता नहीं है, सही बात है। हाँ, वो पुलिस में इस FIR कटवाना ये अपनी जगह पर, इसको बेसब्री से गालिबन वो खारिज, ये बेसब्री नहीं कहलाएगी। ये सारा वो अपना हक वसूल करने के लिए पुलिस के पास गया कि हक इसका मिल जाए इसको, है ना। हाँ, ये तो इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर को जाकर बीमारी का तस्करा किया, वो जितना कहने की ज़रूरत है उतना कहे, मुबालगा ना करे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। या अगर माँ बाप हैं, घर के अफराद हैं, या कोई क्लोज फ्रेंड है कि इसको नहीं बताएंगे तो इसको थोड़ा यूँ नागवार गुजरेगा। अगर ऐसी सूरत है खुद ये समझता है तो जितनी ज़रूरत है उतनी बता दे। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इस तरह वो सब्र की तारीफ से खारिज होगा या नहीं, इसका मुझे कंफर्म पता नहीं है। उधर एक शख्स शाम को थका आ रहा घर आता है, और घर आकर जैसे कि शाम को काम काज से आ गए, अब जैसे घर में बैठा, बहुत थक गया हूँ यार, बदन टूट रहा है। अब ये जो बोल रहा है वो सामने वाला ये बोलेगा, बल्कि बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा पता नहीं। अब ये तो आप रोज़ थक जाते हो, क्या है ये बताने की बात थोड़ी है। तो ये बोलना क्या इसका बेसब्री में आएगा, या मतलब उठे सुबह, अब घर में मतलब बैठे हम यहाँ बीवी बच्चे वगैरह है, वो आदमी उठा और या बीवी उठी, आज रात को नींद सही नहीं आई है, तो मतलब अगर ठीक है इसके बोलने से इसकी थकान उतर जाएगी ना, अगला ये नहीं बोलेगा ठीक है दोबारा जाकर सो जाकर नींद नहीं आई है। तो मगर ये कुछ ना कुछ घर में बात तो होती है ना, तो यूँ सौ मतलब तो पेट खाली नहीं होगा ना, तो यूँ घबराहट तो हो जाएगा, सीने पर बोझ सा आ जाएगा कि यार कोई बात हो ही नहीं रही है। सब्र में मशक्क़त तो होती है ना। अब बच्चा वो शाम को आदमी वैसे आया बोले कि बच्चे ने यूँ तंग किया ना, बच्चे ने, ये बच्चे की सारी होता है डेफिनेटली पूरे दिन की स्टोरी को 5-7 मिनट बोलने का मौका तो देंगे, नहीं बोलेंगे कि ये मतलब कि, तो ये सब बेसब्री में ले जाएंगे हम। असल मसला है कि जैसे किसी ने तंग किया, घर के फर्द ने, या कोई सा काम उसको दे रहा जो ये करना नहीं चाह रहा, अब इस वजह से उसने कह दिया कि यार अब अभी थका आ रहा है, थोड़ा दम तो लेने दो, ये शायद हो सकता है कि बेसब्री में ना आए। इसको शिकवा कहेंगे भी नहीं, असल वो जो बेसब्री होती है वो तो वही कोई तकलीफ़ पहुंची और उस पर वावेला करना, वरना सरदर्द की शिकायत तो ख़ुद सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की थी, तो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सर में दर्द तो मेरे भी हो रहा है। एक तफसीली हदीस मुबारक है इस हवाले से। तो गालिबन ये जो निगरानी शुरा ने मिसालें दी हैं कि थका हारा आया, आज बहुत थक गया हूँ, या रात को सही तरीके से नींद नहीं हो सकी, तो ये बेसब्री इसको उर्फ़ आम में कहा नहीं जाता। सदमे पर आप मतलब ये भी मुसीबत का या किसी न किसी परेशानी का इजहार तो है ना, या इसे सवाल कर रहा हूँ। नियत मतलब हमदर्दी करे कोई मुझसे, मुझे पूछे, वो भी करे तो ठीक है, अब करे कि नहीं करे। अब वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई अमाल ऐसे होते हैं, आप लोगों से ही सीखा है कि वो बयान जवाज़ के लिए भी होते हैं। तो ये बताना नाजायज़ तो मैंने भी नहीं कहा, ना नाजायज़ है, लेकिन यहाँ जो भी कोई ऐसा कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब अर्ज़ किया तो तसल्ली के लिए बाजार सा लग रहा है कि मेरे भी दर्द से ये जो सदमा उला है ना, इसकी हदीस मुबारक वो यही है कि वो औरत कब्र के पास मौजूद होके शिकवा कर रही थी, वावेला कर रही थी, तो उस पर यानी उसको रो रही थी और इस तरह की बात कर रही थी, तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको नसीहत की तो वो पहचान नहीं पाई, सब्र का बोला कि सब्र करो, तो उन्होंने कहा कि जो आजमाइश मुझे पहुंची है वो आपको नहीं पहुंची। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, फिर जब बताया गया तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मैं सब्र करूँगी, तो फरमाया कि अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कि सब्र जो होता है वो अव्वल सदमे के वक्त होता है। तो वो जो शिकवे वाली सूरत हाल थी या जिस पर आहो फुगा करना, ये मामला जो होते हैं उसके लिए इस तरह की बात इरशाद फरमाई गई है। मकतबतुल मदीना की किताब क़ुतुल क़ुलूब उर्दू पेज नंबर जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 198 पर हज़रत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसीबतों और तकलीफ़ों को छुपाना
اور ان کی شکایت نہ کرنا بھی صبر ہی ہے، بلکہ یہ صبر جمیل ہے۔ منقول ہے کہ صبر جمیل ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی شکایت ہو نہ کوئی اظہار۔ شکایت تو ہے صبر کے خلاف، لیکن اظہار بھی نہ کرے، چھپائے رکھے اپنی پریشانی کو، اپنے صدمے کو، اپنی بیماری کو۔ تو احادیث مبارکہ میں جو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بھی اپنی شروحات ہوتی ہیں۔ یہ بہرحال تصوف کی کتب سے جو مطلب سمجھ میں آیا وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش۔ اس مصیبت پر نعم البدل کی دعا مانگی جائے، یہ بھی درست ہے یا کسی دوسرے زمانے میں آئے گا؟ مصیبت پہنچی ہے، اب دعا مانگے کہ اللہ مجھے اس کا اچھا بدل دے دے، اجر عطا فرمائے، اس پر اجر دے اور اس کا بدل دے۔ اچھا، یعنی جو نعمت گئی ہے اس نعمت سے اعلیٰ نعمت مجھے مل جائے۔ ظاہر یہ تو اچھا ہی کام ہے کہ مطلب اللہ پاک سے دعا مانگے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ دعا۔ سبحان اللہ۔ یہ احیاء العلوم جلد 4 پیج نمبر 91، صبر جمیل کی تعریف یہ امام غزالی یوں فرماتے ہیں، صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے، یعنی اس کا یہ بھی نہ پتہ چلے کہ یہ انہیں اظہار کسی طرح بھی نہ ہو اس کا، زبان تو زبان، یعنی کہ اعضاء وغیرہ سے کہ یہ اس وقت کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، یعنی نارمل ہو یا ہنستا بستا مسکراتا ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ محرم الحرام کے مبارک دن جاری ہیں اور 8، 9، 10 محرم الحرام، اتوار، پیر، منگل، مدنی چینل پر انشاءاللہ الکریم دوپہر 2:30 بجے تینوں دن یعنی اتوار، پیر اور منگل 8، 9، 10 محرم الحرام دوپہر 2:30 بجے انشاءاللہ نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے، اور یہ بیان انشاءاللہ الکریم مدنی چینل پر ہم براہ راست دیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ 2:30 بجے 8، 9، 10 محرم الحرام نگران شورا کے بیان کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور 2:30 بجے تلاوت سے یہ پروگرام شروع ہوگا، تلاوت، نعت و پھر سنت و بھرا بیان ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن
अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं जो ये दुआ इसे मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खतवाएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन से सवालात का भी सिलसिला होता है, उसकी भी इंशाअल्लाह करीम आपको तफसील देंगे। और आइए मदरसे के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रम हराम में नफली रोज़े रखने के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने जो तरगीबात इरशाद फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अपनी नीयतों का इजहार हमें भेज रहे हैं। अब तक जो कारकर्दगी हमें मिली 10 रोज़े रखने वालों की नीयतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 30,426, इस्लामी बहनों की तादाद 17,326, 5 रोज़े रखने की नीयतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 34,118, इस्लामी बहनों की तादाद 21,170, 2 रोज़े रखने की नीयतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 1,52,992, इस्लामी बहनों की तादाद 73,629। टोटल नीयतें जो अब तक हमें मौसूल हुई हैं वो हैं 3,29,661। नाजरीन से सवालात होते हैं और दुरुस्त जवाबात देने वालों में ड्रॉ भी होता है। कल जो सवालात हुए थे, सवाल नंबर 1, हमेशा बावजू रहने वाले को जो 7 फजीलतें हासिल होती हैं उनमें से कोई एक फजीलत बयान कीजिए। जवाब, जो हमेशा बावजू रहता है उससे ये 7 फजीलतें हासिल होती हैं। नंबर 1, मलाइका उसकी सोहबत में रग़बत करें। नंबर 2, कलम उसकी नेकियां लिखता रहे। नंबर 3, उसके आज़ा तस्बीह करें। नंबर 4, उससे तकबीर उला फौत ना हो। नंबर 5, जब सोए अल्लाह पाक कुछ फरिश्ते भेजे कि जिन्हों इंस के शर से उसकी हिफाजत करें। नंबर 6, सकरात मौत उस पर आसानी हो। नंबर 7, जब तक बावजू हो अमान इलाही में रहे। सवाल नंबर 2, दिल की सख्ती किस सबब से होती है? जवाब, गुनाहों की वजह से। नंबर 3, गंजे शक्कर किस बुजुर्ग का लक़ब है? जवाब, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह का। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद अली सियालकोट, मोहम्मद जान कोयटा, बिनते इदरीस अत्तारिया शालीमार लाहौर, जुनेद रज़ा रावलपिंडी, उम्मे सुमैर खैराबाद, उस्मान अत्तारी बिन रियासत अली अत्तारी अलीपुर चट्ठा और बिनते दिलावर हुसैन अत्तारिया कराची। सिलेक्टेड नामों में कुरानदाजी हुई, ड्रॉ हुई। इसके ज़रिए निकलने वाला नाम उम्मे सुमैर खैराबाद। इनको तोहफे में 12 माह की मानामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। या अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करें उनको 12 माह तक उनके एड्रेस पर मानामा फैज़ान मदीना कलर ये पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज जो मदनी मुज़ाकरा हुआ उसके तहत होने वाले सवालात, इस्लामी में ने जवाब जो देना चाहें वो महरम का नाम और नंबर लिखें। इस्लामी में ने अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखें, बिनते फ़ुला या उम्मे फ़ुला वग़ैरह। जवाबात कल अज़ान इशा तक आप नंबर पर SMS कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, मुसीबत में मुब्तला शख्स को कोई पहचान न सके उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 2, क्या दुनियावी मुसीबतों से घबराकर मौत की दुआ मांगना मना है? नंबर 3,
کن صحابی رسول نے اپنے آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں موت کی تمنا کی تھی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ